So yesterday we have studied Euler's theorem. Yesterday we have studied the Euler's theorem. Euler's theorem क्या कहता है? Euler's theorem बताइए क्या कहता है Euler's theorem? E to the power I theta. Euler's theorem gives the one formula: e to the power I theta is equal to cos theta plus I sin theta. Now some different forms of the complex number we will study now. Okay, so complex number have standard form z is equal to x plus iy. Okay, z is equal to x plus iy. This is the Cartesian form. Okay, this is the Cartesian form. Now one by one we studied. Now next we study polar form of a complex number. Now how polar form obtains? Polar form is क्या होता है? पोलर फॉर्म मींस इफ वी टेक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ओके, एंड दिस इज पॉइंट पी ऑफ एक्स वाई, देन दिस complex number is represented in terms of Cartesian form as z is equal to x plus iy. Now पोलर फॉर्म अगर चाहिए तो पोलर फॉर्म के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? पोलर फॉर्म के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? r थीटा. हाउ r थीटा? बिकॉज क्या करता है, इस पॉइंट P तक के पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये कुछ एंगल मेजर करना पड़ेगा. सपोज करो ये थीटा मेक किया एंड सम रेडियल डिस्टेंस r. हमें डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी r एंड थीटा के लिए. थीटा दैट मींस एंगल we will require here. Okay, so therefore the polar coordinates are given by r and theta, means role of x will be played by r and role of y will be played by the angle theta. Okay, so r theta में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा बिहेव करेगा वो हमें देखना है. So polar coordinates replacements are given by x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta. These are the simple replacements, okay, which you have already studied in 11th standard, 10th standard. ये जो x की वैल्यू है वो हम r cos थीटा पकड़ते हैं एंड y इज इक्वल टू क्या करते हैं? r sin थीटा. अगर ये दो वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट किया तो क्या मिलेगा? z इज इक्वल टू रिप्लेस x by r, so we will get here r cos थीटा एंड y की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम? r sin थीटा, सॉरी I into y, r sin थीटा. So take r common, so r is equal to we will get here cos थीटा प्लस r कॉमन आ गया I sin थीटा. बट अभी हमने कल पढ़ा दिस फॉर्मूला r cos थीटा, सॉरी cos थीटा प्लस I sin थीटा. cos थीटा प्लस I sin थीटा की वैल्यू क्या होती है? e to the power I theta, e to the power I theta. So z का हमें न्यू फॉर्मूला मिला, z is equal to r into e to the power I theta. z equal to r into e to the power I theta. देखिए पूरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस फॉर्म में आया? r and थीटा में आया. So this is called polar form of a complex number. Polar form of a complex number. Z equal to r into e to the power I theta and e to the power I theta की वैल्यू क्या होती है? cos theta plus I sin theta. Now मैंने कल बताया था, ये भी हमने पढ़ा था, मॉड अगर लेंगे हम तो मॉड ऑफ e to the power I theta की वैल्यू क्या होती है? मॉड ऑफ e to the power z देख लेते हैं प्लस, so that is equal to e to the power z is replace, z की वैल्यू क्या होती है? x plus iy. So this will gives that is equal to क्या होता है? That is equal to e to the power x mod of e to the power x into mod of e to the power I theta. So that is equal to e to the power x. e to the power x हम सेपरेट करेंगे mod e to the power x into mod of e to the power I theta. आवाज आ रही है क्या सबको? यस सर, ये था. हेलो, येत आहे सर आवाज. हेलो,
हेलो, हेलो, ओके। येत आहे सर आवाज? Okay, so we get here mod z, mod of e to the power z equal to mod of e to the power x, mod of e to the power x into mod of e to the power I theta. So but mod of e to the power I theta, mod of e to the power I theta क्या होता है? This is less than or equal to 1, and therefore mod of e to the power z is less than or equal to mod of e to the power x. Okay, सो ये एक आपको प्रॉपर्टी मिली इसकी। नेक्स्ट देखिए, नाउ नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे मॉडुलस एंड आर्गुमेंट, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z। सो मॉड अगर निकालना है तो मॉड अभी मैंने बताया मॉडुलस ऑफ z, मॉड z इज इक्वल टू, ये तो हो गया इसके लिए। अभी मॉड z इज इक्वल टू अगर हम वैल्यू पुट करेंगे, सपोज करो इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट, तो मॉड z इज इक्वल टू क्या होता है? x प्लस आई वाई, मॉड ऑफ x प्लस आई वाई, एंड इसका मॉडुलस पता है क्या होता है? दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। बट स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? दैट इज इक्वल टू r स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू r। सो मॉड z इज इक्वल टू r, याद रखिए मॉड z इज इक्वल टू r, और स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अगर पोलर में चाहिए तो क्या होगा? मॉड z इज इक्वल टू r होगा, दिस इज इन द पोलर फॉर्म, एंड अगर इन द कार्टेशियन फॉर्म चाहिए तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। नाउ एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट, एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट। सो व्हाट इज एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड मींस क्या होता है? जो भी एंगल कॉम्प्लेक्स नंबर, हेलो, हेलो,